So good morning. Good morning. First, we will introduce ourselves. Tell your name and the profession, and if you have any specific element you have come for. Guru Prasad, working in CC Publication Trust as an accountant with Jays. Yes. Main problem is on acidity, like little problems. Acidity. Control that. Myself, Vimal Datta, I am also working in publication under Vijay. So this program is sponsored by publication, perhaps. अपने लोगों को घेरा है पकड़ के लाया है. See, that is the way it proceeds actually. Yeah. If you go to stranger बोलेगा पूरा दिन क्या सुनना है? पूरा दिन खाने पर क्या सुनना है? करेक्ट From them. Too much ना, एक खाना इस विषय पर आखा नहीं क्या? सोचा खाना है खाना तो देने वाले नहीं है, सिर्फ बातें करने वाले हैं. वो भी और further adds to the problem है. Talking about the food and not serving anything and telling go home. And in fact मैंने तो मैसेज में लिखा था lunch भी अपने साथ में लेके आओ. Even I am not even that much courteous to offer lunch when I am calling for the post, but I don't want it to get into the book and all that. अगर समय मिले तो we'll definitely sometime gather together and have 7.4 lunch too. तो any specific problem आपका? प्रॉब्लम तो सर कोई नहीं है मेरा. मेरी एज जो है 64 के करीब है. मैं लाइफ में कभी आज तक बीमार नहीं हुआ, कभी छुट्टी नहीं लिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो अभी मेरे को थोड़ा बीपी का लग रहा है कुछ महीनों से ऐसे. उसके लिए मैं करना चाहता हूँ. Yeah, my name is Pankaj Mani. I am in publications only. I am in sales department. So I personally came because of the conviction he has. ये बड़ा अच्छा है चल. वो जितना उसका कन्विक्शन बढ़ा ना उतना मेरा बीपी बढ़ा. Because I feel more responsible कि भैया क्या बंदे ने क्या बोल के रखा है, ऐसा है वैसा है फलाना है ढमका है. So मैं बोलता yesterday he said में ये आज आखिरी बार खा ले, कल से खाना अच्छा देख लेना. कल से बंदी होने वाली. Problem in the sense you can just see. Yeah, of course, obvious. So currently nothing is there, but there are a lot of chances I Of hope course. because of that. ऐसी बात है नहीं एक्चुअली. आई टेल यू, मतलब एक बात पहले साफ ध्यान में रखो. मोटापन बीमारी लाता है, लेकिन जो दुबले पतले है ना वो भी उतनी ही मात्रा में बीमार होते हैं. ऐसी भी बात नहीं है कि वो मोटा है इसलिए बीमार है. सो पदार्थ बीमारी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीइंग ओबेस और अदरवाइज. कोलेस्टेरॉल हाई जो पतला है उसका भी होता है, बीपी हाई जो पतला है उसका भी होता है, डायबिटीज उसको भी होता है, कैंसर उसको भी होता है. सो डेफिनेटली ओबेसिटी एड्स अप टू एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. निश्चित, डेफिनेटली. सो माय मैसेज इज जो ओबेस है वो बेकार का टेंशन मत लो, और जो दुबले पतले है वो एकदम केयर फ्री मत लो. बोथ बी रीजनेबल एंड केयरफुल. तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं. थोड़ा सा तो बिल्कुल नहीं करता, वही तो दिख रहा है. मैं चिंता नहीं इसलिए हाल है. आज की नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ. Rajiv, working in Moser Wear as a salesman. And the problem from last 2-3 years, diabetic and high BP. High BP from starting day, that is cut point 92 from 31. I'm working in that Stressful. so that's That has added to the complications. Sir, I'm Tanush Shrivastava, and now I'm a housewife, and I have no any problem, but sometimes I feel very weak. Am I smoking, sir? Myself Sanjini Joshi, working in Vedic Finance, Vedic Development Finance Office. Which one? Vedic Dharma Sansthan Finance. Vedic Dharma Sansthan. Yes. It's a wedding. So my name is Madhav Joshi. I was working in Industrial Development Bank of India, IDBI. I completed my 29-30 years in IDBI and opted for VRS in 2005. In 1981, 82, 83, I was associated with one organization, Nana Palkar Smriti Samiti. The motto, the aim of the organization was to help
those who are sick. It was in Bombay, of course, and at that time in 1981-82, in Maharashtra particularly, I don't know about Karnataka. Outside Bombay, there were no much facilities so far operations and high-profile problems are concerned. Elementary, okay, but all facilities were clustered in Bombay. Support system, and rest of the Maharashtra very less. So we used to get patients not only from Maharashtra, of course, all over India. He will go to some doctor in some village and he will try to help him, and he will then say, no, go to the district hospital. Like that, at the end, finally they will land in KEM hospital. And once he lands in KEM hospital, basically he is at third stage of the problem. And in that time we used to go and help those people. The paisa phone hai. Hello. एक मिनट. This phone will be with Mr. Vijay and he will guide you. तू बाहेर जाऊन त्याला सांग. मग नंतर बंदच करायचं. Hello. So my job, I had no medical knowledge even at that time and now also. My job was to go to hospital and attend to that patient. कि भी कैसे हो, हालचाल पूछना बोलते हैं, हालचाल पूछे क्या है, कोई किताब कोई दे वो पढ़ के दिखाए, न्यूज़पेपर पढ़ के दिखाए, उसको हेल्प करे, दवा लाना है तो since he has nobody to attend to, जाके उसके लिए दवा आधा घंटा काम करो. 6 o'clock my office is to get over. By 6:30 to 7 o'clock go home. 3 साल मैंने काम किया. I worked like this for 3 years. And 3 साल में मैंने इतने पेशेंट्स देखे, so I was shaken. सर से लेकर पांव तक n number of diseases देखे. Once a person gets a disease, goes to doctor and gets hospitalized, वहां से उसके बुरे दिन चालू होते हैं. अच्छे दिन आने वाले नहीं उसके लिए. नो अच्छे दिन, उसके बुरे दिन चालू होते हैं. अगर उसके बुरे दिन चालू होते हैं ना तो चलो मैं मान लो जैसे तैसे वो निकाल लेगा, लेकिन उसके फैमिली का क्या? अगर कोई बीमार पड़ता है तो ऑब्वियसली हिज फैमिली आल्सो गेट्स ड्रैग्ड इनटू हिज होल हॉस्पिटलाइजेशन, अटेंडिंग टू ऑपरेशंस एंड देन पोस्ट ऑपरेशन केयर. तो मैंने सोचा कि भाई मरना तो मुझे है, डॉक्टर को भी मरना है, पेशेंट को भी मरना है, लेकिन मेरा संकल्प था, तगड़ा संकल्प था, बहुत तगड़ा संकल्प था, मरते दम तक मुझे कोई बीमारी ना आए. I didn't want to or don't want to see the face of doctor in the whole of my life. डॉक्टर का मुंह नहीं देखना है. और जब मैं मरूं तब शायद डॉक्टर लगे डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए, बट उस समय मर चुका हूं ना, तो मुंह देखने की जरूरत नहीं है. इवन एट दैट टाइम आल्सो आई डोंट हैव टू सी हिज फेस. और मेरा संकल्प इतना तगड़ा था, मतलब है अभी भी, कि डॉक्टर जब मुझे डेथ सर्टिफिकेट देना, हैज एनीबॉडी किल्ड अ स्नेक? किसने सांप मारा है आप में से? तो देखा है. आपने मारा है, आपने एटलीस्ट सांप तो देखा है. आजकल तो चित्र में देखना पड़ेगा. जो वाइल्ड लाइफ जो खत्म होते जा रहा है कि ये ऐसी इसको सांप बोलते हैं, चित्र बताते हैं ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज या एक्सटिंक्ट स्पीसीज. सांप मारने के बाद आप क्या करते हैं? उसको दफना देते हैं. उसके पहले क्या करते हैं? उसके पहले मारना होता है उसको. उसके पहले मारना पड़ता है. मारना और दफनाना, उसके बीच में आप कुछ करते हो. जिसने सांप मारा है वही बोल सकेगा. अगर आप उसके आंखों को कुछ डैमेज कर देते हैं. हाँ, यस, डैमेज वो तो करते हैं. नहीं, आंखों को उससे भी बात उसका जो सर होता है उसको कुचलते हैं, ताकि वो आपको पहचाने नहीं. बात नहीं, अगर वो दूसरे रूप में नागिन के रूप में आ जाएगा, he will not remember. उसके बाद भी कुछ करते हैं. ये तो क्योंकि मराठी में हम बोलते हैं ढवशली, मतलब चेक इट करते हैं वो मरा है कि नहीं मरा है. आफ्टर यू किल यू इंश्योर दैट इट इज किल्ड. फिर आप दफनाते हो. तो एक लंबी स्टिक रहती है, आप उसको
टच करते हो, देखते हो रियल मरा है। एक बार वो डिक्लेयर होता है मर गया, फिर बाकी सारे लोग घर से बाहर निकलते, अरे मैं होता तो ऐसा मारा। ऐसे कई मारे हैं, ये क्या बड़ी बात, ये तो इतना सा है, मैं तो इतना बड़ा मारा था। वो इंश्योर करने के बाद, उसके पहले कोई घर से निकलेगा। तो मेरी मनसा ये है कि जब डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देके निकले ना, जाने के पहले उसने ऐसा लात मार के देखना चाहिए, ये बता मरा है कि नहीं मरा है। लगता तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन ये मरा है कि नहीं मरा है, उसके मन में शंका, डाउट आना चाहिए। सो माय आइडिया इज हिज कॉन्फिडेंस शुड शेक व्हेन ही लीव्स द रूम। जहां मेरी बॉडी रखी है, ऐसी मेरी मनसा, ऐसी हेल्थ चेक। और ये संकल्प जैसे इन जैसे लोग जो होते हैं, एक समय में अभी भी 88 kg था, तो 1 जनवरी ये संकल्प का दिन रहता है। आजकल योगा डे 21 जो है ना, वैसे 1 जनवरी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संकल्प दिवस करके डिक्लेयर करना चाहिए। सारे तमाम 120 करोड़ लोगों के मन में 1 जनवरी में कुछ ना कुछ तो संकल्प आता है ना, कि मैं पतला होना है, मोटा होना है, फलाना होना है, ढमका होना है। तो 1 जनवरी शुड बी डिक्लेयर्ड वर्ल्ड संकल्प डे। तो सारे लोग संकल्प करते, वैसे मैंने भी संकल्प किया, वजन कम करना है, फलाना। 10 दिन नहीं होते हैं, रथ सप्तमी बोलते हैं। रथ सप्तमी समझते हैं ना? रथ सप्तमी नहीं होती है तब तक वो संकल्प अपना पैकअप करके जूते और ट्रैक सूट डाल ऊपर चला जाता है। एंड देन नेक्स्ट ईयर्स 1 जनवरी। So I was also not exception to this rule. 5-10 years down the line, the situation was that जिस व्यक्ति का संकल्प ऐसा था कि मरने के बाद भी वो जिंदा है ऐसा लगे, I had 14 deviations in my health. कम इथे क्या ना? हाँ, तू इथे मग तो इथे बसेल नाही मी बसून खाली असं काही म्हणत कारण एक तो प्राणी यायचा आहे ना, जरूर तुला मग मी बसते खाली बस काय दिसतोय. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम, असेल बघ. ठीक आहे. नाही तुला अरे ते काय डान्स चालेला नाही, देखने में क्या सुनने का है उसमें. And one of the 14 deviation was acute acidity. 24 hours acidity, acute hair fall, low hemoglobin, knee pain, lumbar pain, जैसे कि विजय ने कहा, हाई LDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स, लो HDL, लेस वाटर कंटेंट इन बॉडी, लेस मसल्स कंटेंट इन बॉडी, हाई फैट कंटेंट इन बॉडी, ओबेसिटी. मतलब ऑलमोस्ट आई वाज अ फेल्यूर इन 14 सब्जेक्ट. एक मैं वो स्टूडेंट था जो 14 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था. 30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 30 years ago. एक बार मुझे अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो. टोटल कितना एप्रिशिएट किया नहीं आपने? किया. हाँ, आज मैं आफ्टर 30 years 14 के 14 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन से पास हुआ विद्यार्थी हूँ. मेरा 12.5 हीमोग्लोबिन था, 16 हीमोग्लोबिन. मेरा 88 वजन था, आज मेरा 78 वजन है. वाटर कंटेंट बढ़ा, मसल्स कंटेंट बढ़ा, फैट कंटेंट कम हुआ, एसिडिटी 0. 30 years ago I was not able to sit like this. After 30 years I am able to sit in Vajrasana also. I can sit in Vajrasana and do something, no problem. Even like this I can sit hours together and talk to you. Normally I don't advise sitting in Vajrasana, but my point is the transformation which has happened in me. Do you understand lumbar spondylitis? मतलब कमर दर्द. L5 is displaced 25% over S1. lumbar 5 vertebral shift हुआ है sacral 1 से 25%. It is called grade 1 listhesis.
फिर ग्रेड 2 लिस्थेसिस, ग्रेड 3 लिस्थेसिस, ग्रेड 4 एंड ऑपरेशन। 25 साल पहले मुझे ये प्रॉब्लम था। आई वॉज नॉट सपोज टू बेंड। डॉक्टर ने बोला बेंड मत करो, दौड़ो मत, नो मोटरसाइकिल। यहां तक कि आई स्टे एट कांदिवली, लाइक आप जो बंदा आने वाला है ना, काय त्याचं गाव असं नाव? मैसूर. नहीं, गावाचं बय्यमपल्ली. सपोज you are staying at Bayyanahalli and you have to come to Bangalore city cantonment and you are told not to get into the train and not to get out of the train. How you will travel? I stay at Kandivali and I go at Churchgate. Go to Churchgate. डॉक्टर ने कहा कि गाड़ी में चढ़ो मत और गाड़ी से उतरो मत क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म और गाड़ी का जो फुटबोर्ड है उसमें इतना अंतर है. इवन लिफ्टिंग लेग लाइक दिस also amounts to backward forward bending. Fortunately 2005 में VRS आई and we were offered golden handshake and for completed a 2 months salary I got it and got out of it. So जिस व्यक्ति का संकल्प था निरोगी मरे, उस व्यक्ति को इतने प्रॉब्लम्स हुए and it took me around 29 years to understand why we fall sick and how to get out of it. सिर्फ समझना हम कैसे अटक गए मालूम पड़ा, लेकिन बाहर कैसे निकले. So it took me 1981 से जो जर्नी मेरा शुरू हुआ 2009 तक वो चलता था. And 2009 I was enlightened. मैं बुद्ध हो गया और फिर मैंने ज्ञान बांटना शुरू किया. तो मेरे अराउंड 2500 विद्यार्थी है जिन्होंने ये कोर्स किया है एंड thousands of thousands जिन्होंने बात सुनी है. बिकॉज लाइक आई टेक कोर्सेज फॉर स्मॉल ग्रुप्स, आई गो एंड टॉक टू मासेस ऑल्सो. व्याख्यान भी देता हूँ, लेक्चर भी देता हूँ, जहाँ जाके लोगों से बात करता हूँ. यस सर, वेलकम, प्लीज कम, प्लीज कम. Very sorry for disturbing and No, no, you are not disturbing at all. I was waiting for you. बस ये खाली बस. खाली comfortable here. Comfortable here. ये बैठ डालो मैं बैठ. उसको वो टच मत कर, होने देना बस. वो सेटिंग किया हुआ है. ठीक है, बोल पड़ो. काय समोर तो किसान. आप तो एनलाइटनमेंट. हाँ, ये एनलाइटमेंट में कैसे भूल गया मैं? मतलब वो खोटा था इसका. कोई व्यक्ति एनलाइटमेंट में भूल जाएगा क्या? एनलाइटमेंट हुआ. That's the first sign of enlightenment. I don't remember I am enlightened. That is the sign of enlightenment. You are right. अगर मैं यहाँ मैं enlightened हुआ तो कहना I am an enlightened person. एक बार हमने आए उसके तब ये बहुत बड़ा जोक हुआ था उसका. I am enlightened. Are you enlightened? So thereafter I started giving lectures and taking courses. I have been doing this all over India, right from Kashmir to Mysore. And my Mysore participant is in front of us right now, who was running the course few years back. So it is a gist. In Indian culture, there is one saying. ये जानने के बाद और कुछ जानने जैसा नहीं रहता, बचता नहीं. Once you know this, मतलब you know everything now. अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ आज के दिन में, whatever is applicable in that spirituality or culture, फूड के लिए मेरी दृष्टि में आज मैं जो बोलने वाला हूँ आपको, वो जानने के बाद आपको और कुछ जानने जैसा बचेगा. एक बार मुझे इन एडवांस में एप्रिसिएशन करो. कोर्स मध्ये पण करतोच ना एप्रिसिएशन सेशनच असतं बाबा. 5 वेळा कोर्स केलाय मी. आय नो when you appreciate me, whom you appreciate? God. God. So संकोच मत करना मुझे एप्रिसिएशन करते समय. Actually you are appreciating God. So ऐसा क्या नॉलेज है, क्या इंफॉर्मेशन है और किसने मुझे बताया ये? It is not my creation. I am a donkey. I call myself a donkey. कैसा डोंकी? जो सोने का
गनी बैग उसके पीठ पर है, who is carrying a gold गनी बैग। तो डोंकी को क्यों देखते हो आप? गनी बैग को देखो ना। माधव जोशी को मारो गोली, मैं तो कैरियर हूं ना, आई एम लाइक अ पोस्टमैन, आई एम रीचिंग यू विद द इंफॉर्मेशन। अब ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है और ऐसी क्या उसको साइंस की बैकग्राउंड है जो जानने के बाद दो चीजें होगी। एक, यू विल नॉट गेट एनी डिसीज एट ऑल, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, जो डिसीज आपके शरीर में है वो भी चला जाए। सो अपनी एक त्याला वही दे आणि ह्याला पण वही। सो लेटस जो हम कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना, when you go for any trust registration, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो क्या पूछते हैं आपका? नहीं, पर्पस ऑफ फॉर्मेशन। आप क्यों इकट्ठा हुए हैं? तुला काय पाहिजे? ती पुढची खालची पिशवी नाही, खालची सो क्योंकि ये आप लिखो और इवनिंग यू हैव टू इवैल्यूएट वेदर इट हैपेंड और नॉट। सो वी आर लुकिंग फॉर दैट फूड स्ट्रक्चर। What is the aim of the course? We are looking for that food structure. अब ये कैसा फूड स्ट्रक्चर है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, गुणधर्म क्या है? आपने कभी गाय खरीदी की है? अब आश्रम की तो बहुत सारी गाय हैं, अब पता नहीं आप पब्लिकेशन वाले हैं गाय खरीदी करते हैं कि नहीं करते हैं? किया सर। आपने नहीं किया, आपने किया। जब कोई गाय खरीदी करता है ना तो क्या देखते हैं? गाय नहीं, दूध। तू किसका खरीदी नहीं ना? दूध के दादाजी को देखा है। हाँ, मैंने बोला किसके दादाजी ने किया, मैं पूछा क्या, मैं बोला किसने किया है, जिनको किया है उनका एक्सपीरियंस पूछे ना। उसमें देखते हैं दूध कितना देती है। दूध की यस। और उसकी सेहत कैसी है, सेहत और दूध मतलब कैसी है, देखने में कैसी लगती है, सेहत अच्छी है। मराठी में कहते हैं जब कोई गाय खरीदी करने जाता है ना तो क्या क्या देखता है? आखुड़ शिंगी, सिंग छोटे हो, हाँ यस करेक्ट। बहुदूधी, हाँ जी, दूध ज्यादा दे। दांत भी देखते हैं। आखुड़ शिंगी, बहुदूधी, अल्पकष्टी, मतलब उसकी सेवा ज्यादा करने ना, थोड़ी सी सेवा करे और काम बने। आखुड़ शिंगी, बहुदूधी, अल्पकष्टी, कम खर्ची, खर्चा कम हो उस पर। आखुड़ शिंगी, बहुदूधी, अल्पकष्टी, कम खर्ची, स्वभाव से गरीब, घास कम खाए और गोबर ज्यादा दे। दूध ज्यादा दे ना। नहीं, दूध तो बहुदूधी तो पहला क्राइटेरिया है। दूध के साथ साथ घास कम खाए और गोबर भी ज्यादा दे। 2 पैर के नीचे सो जाओ वो भी लात नहीं मारेगी। ऐसी गाय हम ढूंढते, मिलती नहीं कभी ऐसी गाय। लेकिन ये जो हमारा फूड स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसी गाय जैसा है। आखुड़ शिंगी, बहुदूधी, अल्पकष्टी, कम, इसका मतलब है सर्वगुण संपन्न फूड स्ट्रक्चर, उसमें कोई खोट न हो, ऐसा होना चाहिए। शाम को हम निर्णय लेंगे क्या ऐसी गाय मिली कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एम सो हाई दैट यू नेवर गेट बोर्ड। हम ऐसी गाय ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिसमें सारे गुण हो सकता है हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन एम करने में क्या जाता है, ऐसे उसको कपिला बोलते हैं। ये जो गाय का वर्णन है ना, ये अपने यहाँ भारत में कपिला गाय बोलते हैं, नहीं कपिला गाय का वर्णन। सो अपनी ये जो स्कीम है ना, ये कपिला गाय ढूंढने जैसी है। और ऐसा फूड स्ट्रक्चर होने के बाद आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके 3 प्रॉपर्टीज है। लिखो, पहली प्रॉपर्टी गाय की प्रॉपर्टी लिखी, इतना लिखो, आखुड़ शिंगी, बहुदूधी, आगे का छोड़ दो। ये कहावत है, इट इज इडियम, आखुड़ शिंगी, बहुदूधी। और अपनी अभी स्कीम कैसी है फूड स्ट्रक्चर, वो तो बुक में ऑफकोर्स दिया है। विथ मिनिमम एफर्ट्स, इस पर लिखा है, मैं वही सेंटेंस आपको पढ़ देता हूं। विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम
पहला गुण है विथ मिनिमम एफर्ट्स, दूसरा गुण है एंड विदाउट डिस्टर्बिंग योर डेली रूटीन, तीसरा गुण है। Within shortest time. पहला है विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, दूसरा है विद मिनिमम एफर्ट्स, और तीसरा गुण है विदाउट डिस्टर्बिंग योर डेली रूटीन। So end of the day you have to evaluate whether this scheme conforms to these norms. So हम पहले डायबिटीज पर बात करेंगे। Before we go to even diabetes, पहले लिख ले डिसीज क्यों होता है, why we get a disease, what is the genesis of disease। एक कारण है उसका एसिडोसिस, ACIDOCIS, एसिडोसिस। दूसरा कारण है एसिडोसिस मींस आई विल कम टू दैट, पहले हम लिख लेते हैं देन आई विल एक्सप्लेन। ACIDOSIS, एसिडोसिस। दूसरा कारण है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तीसरा कारण है केमिकल्स। चौथा कारण है फॉल्टी स्ट्रक्चर, मतलब फॉल्टी फूड स्ट्रक्चर। फॉल्टी फूड स्ट्रक्चर का अर्थ ये है फूड इज करेक्ट, फूड में कोई खोट नहीं है, उसका स्ट्रक्चरिंग एंड टाइमिंग इज फॉल्टी। ये शुद्ध सात्विक फूड है, लेकिन अगर आप गलत समय खाओगे तो शुद्ध सात्विक फूड होने से कोई मतलब नहीं है, आपको डिसीज हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज जर्म्स, बैक्टीरिया एंड वायरस। वो ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में जर्म, बैक्टीरिया, वायरस ये कोई कारण है ही नहीं बीमार होने का। और उसके आगे लिखो और जो भी कारण कफवात, जो भी आपको इस मेरी दृष्टि में पहले जो 4 लिखे हैं ना वो बीमारी के कारण है, दैट इज द जेनेसिस ऑफ डिसीज। उसके आगे आपके मन में जो है आप लिख सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में वो 10, 15, 17, 18, 19, 20 जो भी है, जैसा भी है। तो पहला कारण है एसिडोसिस। नाउ वी विल इलैबोरेट ऑन एसिडोसिस। आप में से कॉलेज में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़े कितने हैं? हाथ जरूर ऊपर करो। केमिस्ट्री नहीं, कॉमर्स तुझं काय? कॉमर्स तुझं? कॉमर्स। See, this is pH scale. What is pH? pH is power of hydrogen. हम वजन किस में नापते हैं? How you mean which weighing machine है? उसका परिमाण मतलब मेजरमेंट क्या होता है वजन का? किलो, पाउंड, टन, जो भी है। अंतर, डिस्टेंस कैसे नापते हैं? किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, जो भी है। सो pH इज किसी भी लिक्विड में हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। उसका अगर विघटन करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो उसमें से एक H मिलता है, एक H मिलता है। ये जो H है ना, इज कॉल्ड एसिडिटी, और ये OH है, इज कॉल्ड अल्कलाइनिटी। बेस, ये एसिड है, वो बेस है, एसिड बेस कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है। सो व्हाट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन इन एनी गिवन टाइम? एक लिक्विड में
H की संख्या कितनी है, इज दैट मेजरमेंट। मतलब 14 pH है तो लीस्ट H होगा, और 0 pH है तो मैक्सिमम H होगा, एंड द रेंज इज बिटवीन 0 to 14। 0 इज एक्सट्रीमली एसिडिक, 14 इज एक्सट्रीमली अल्कलाइन, एंड 7 इज न्यूट्रल। तो आप लाइन बनाओ अपने बुक में, अराउंड 6 इंच, 6 इंच का एक लाइन बनाओ। लेफ्ट कॉर्नर में लिखो 0, राइट कॉर्नर में लिखो 14, सेंटर में लिखो 7, एंड हाफ इंच टुवर्ड्स 14, 7 की हाफ इंच टुवर्ड 14, 7.14। So this is the basic structure of pH scale. अब इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं 0 pH का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लिखो इसके नीचे HCl। 14 के नीचे लिखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, और 7 के नीचे लिखो H2O, वाटर। ठीक है, और 7.4 जो लिखा है ना, उसके नीचे लिखो ह्यूमन ब्लड। Means if you maintain your blood at the pH of 7.4, you will never fall sick. So in my book's name is Power of Hydrogen, Expressway to Health and Vitality 7.4। तो सारा मेरा काम ऐसी फूड व्यवस्था देना है, such a food structure which will maintain the balance automatically. Your body does maintain. If you eat wrong food, your body has 5 systems, inbuilt system, 3 chemical systems, 2 physical systems. Protein system, carbonate system, phosphate system are called intracellular systems, which take care of this pH, to maintain that pH. And 2 physical system, respiratory system and urinary system. ये लिखो मत, बुक में है, बुक देने वाला आपको, आप समझो पहले। So यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस माधव का जन्म क्यों हुआ था? जब धर्मों को ग्लानि आती है, फलाना फलाना फलाना। इस माधव का जन्म क्यों हुआ है कि जब 7.4 को ग्लानि आएगी आपके, तो उसको रिस्टोर कैसे है? अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, इसलिए मेरा जन्म हुआ। लेकिन ये मैंने खोजा नहीं खोजा, साइंटिस्ट ने खोजा है, मैं जस्ट कैरी कर रहा हूँ। आई एम जस्ट कैरिंग इट टू यू। तो सारी व्यवस्था खाने पीने की ऐसी हो, प्रॉब्लम क्या है? यू हैव 5 सिस्टम्स इन योर बॉडी, आई एग्री, लेकिन उनकी करेक्ट करने की जो क्षमता है ना, वो लिमिटेड है। और आप अत्याचार पर अत्याचार करे जा रहे हो, रुकने का तो नाम नहीं। वो अत्याचार की जब हद हो जाती है, फिर वो सिस्टम बोलते भाई मैंने अपना काम किया है, अब आई कांट। देन कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये आपके शरीर में जो अल्कलाइन रिजर्व्स बोलते हैं, वो इरोड होना शुरू होते हैं। इट्स कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ अल्कलाइन रिजर्व्स। और जैसे जैसे अल्कलाइन रिजर्व्स कम होना शुरू होते हैं, तब आप बीमार। सो दिस बेसिक पॉइंट इज फॉल इन पीएच इज कॉल्ड एसिडोसिस। पहला जो कारण एसिडोसिस क्या है? सो एसिडोसिस शॉर्ट में लिखो फॉल इन ब्लड पीएच, संक्षेप में लिखो इन शॉर्ट, फॉल इन ब्लड पीएच इज एसिडोसिस। उसका मेन रीजन क्या है? व्हाई ब्लड पीएच फॉल्स? रॉन्ग फूड। अब कारण की तरफ भी जाते हैं। व्हाई ब्लड पीएच फॉल्स? रॉन्ग फूड। उसके आगे लिखो when buffer systems in body fail, when buffer systems in body fail,
depletion of alkaline reserves starts. Depletion of Depletion of alkaline reserve starts. और ये जो मिनरल्स है ना, उनके बहुत वाइटल रोल है अपने शरीर में. And when you don't have enough minerals to perform that role, फिर प्रॉब्लम शुरू होता है. सपोज कैल्शियम इज इरोडेड. क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर स्त्रियों का जब कैल्शियम कम होता है तो डॉक्टर उनको कैल्शियम सप्लीमेंट लेने को बोलते हैं. कैल्शियम सप्लीमेंट, बराबर है. यू विल सफर फ्रॉम हेयर फॉल, फटीग, lumbar pain, knee pain, calf pain, cramps. You start taking Shelcal. See, I have no problem if you take Shelcal. Have you ever thought of why your calcium is depleted? Why your calcium is depleted? Now I am here to tell you why your calcium is depleted and not to suggest any calcium citrate, calcium malate, lactate food supplements. सो डिसीज के पहले डिप्लीशन इन रिजर्व्स, उसके पहले फेल्यूर ऑफ योर प्रोटेक्टिंग सिस्टम, उसके पहले एसिडोसिस, उसके पहले फूड. दिस इज हाउ फूड इज कनेक्टेड टू योर डिसीज. वन वे ऑफ लुकिंग एट द डिसीज. द अदर वे, पार्ट बी, इसमें से एसिडोसिस में पार्ट बी. व्हाट आर द टू साइड इफेक्ट्स ऑफ एसिडोसिस? वन लिखो, फर्स्ट इफेक्ट is accumulation of toxicity around the cells. Accumulation of toxicity around the cells. Now what is this accumulation of toxicity? See, when your blood gets acidic, more and more H starts remaining in your blood, because H is the acidity. When blood pH falls, more and more H. This H, suppose this is your thyroid cell. ये बचे हुए H जाएंगे कहाँ? These H will encircle your healthy cells. When acidity encircles your cell, cell gets degenerated. So उसमें second point देखो. Excess toxicity which accumulates around the cell results in degeneration of cell. Excess acidity which remains in blood accumulates around the cell. This accumulation results in degeneration of cell. अगर सेल डिजेनरेट होता है तो उसको माल फंक्शनिंग में उसका कन्वर्जन होता है. सो द सेल विच इज द पार्ट ऑफ ऑर्गन, तो ऑर्गन का माल फंक्शनिंग होता है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? First is toxicity remains in blood. Second step, toxicity encircles the cell. Third is cells get degenerated. Now what is organ? वो organ is a cluster of degenerated cells. अगर cells degenerated है, cells weakened है, तो वो weakened cell से बना हुआ जो organ है, it can be your pancreas, it will result in diabetes. It can be your thyroid, it will result in thyroid problem. वो ऑर्गन का जो क्लस्टर है सेल्स का, वो अगर काम नहीं कर रहा है, then organ starts malfunctioning. एक कारण. दूसरा कारण है एसिडोसिस का, ये एक रिजल्ट है. दूसरा रिजल्ट है श्रिंकेज ऑफ योर ब्लड सेल्स. दूसरा क्या रीजन है? व्हेन ब्लड पीएच ड्रॉप्स, ब्लड बिकम एसिडिक. ये दूसरा है रीजन, उसका दूसरा परिणाम है. द सेकंड रिजल्ट इज आरबीसी जो है ना आपकी आरबीसी, उसका आकार छोटा हो जाता है.
श्रिंक हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीसी? चलो कॉमर्स वाले तो इतना बोलना चाहिए, रोल ऑफ आरबीसी क्या है? तुम्हारा क्या साइंस आर्ट्स कॉमर्स का है? आरबीसी का कुछ रोल है शरीर में। आरबीसी मतलब लाल रक्त पेशी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, खून। अपना जो खून हैज खून एनी रोल इन योर बॉडी? बेकार है, नक्की है। हीमोग्लोबिन तो हाँ, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन। रोल का है ऐसा, व्हाट इज रोल? इनका रोल है अकाउंटेंट है, इनका रोल है सेल्स है, इनका रोल है हाउसवाइफ है। आप यहाँ पब्लिकेशन जहाँ भी किस भी काम करती है? फाइनेंस, वैदिक फाइनेंस। तो कुछ फाइनेंस अकाउंट जो भी लो, कुछ रोल तो है ना आपका, बेकार का तो कुछ मिलता नहीं। What is the role of RBC? See, we are ultimately searching why I have fallen sick. रोल RBC के बहुत सारे रोल है। RBC का पहला रोल है, मुख्य रोल है टू सप्लाई ऑक्सीजन। आप सांस लेते हो, दैट ऑक्सीजन इज हेल्ड बाय RBC, नॉट WBC। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं, सफेद रक्त पेशी नहीं ऑक्सीजन पकड़ती है, RBC ऑक्सीजन पकड़ती है और फेफड़े से निकाल के आपके जो भी ऑर्गन है उसको पहुंचाती है। सो आरबीसी इज अ कैरियर बेसिकली। वो कैरियर आपका, मान लो एक कटोरा भर के मैंने आपको रबड़ी दी, क्या बात है, इतना बड़ा, और आपको मैंने इतने से कटोरे में रबड़ी दी, तो भूखा कौन रहेगा? जिसको छोटे में मिली वो भूखा रहेगा। तो आपके जो कटोरे हैं उसका आकार छोटा हो जाता है, क्यों? ब्लड एसिडिक हुआ है। आप सांस लेते हो, मान लो चलो प्राणायाम करते हो, आप तो सारे साधक है, आप प्राणायाम करते हो, सांस ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है, लेकिन आपका आरबीसी छोटा है, वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं, वो अंदर जाता ही नहीं। आपको भ्रम होता है ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया, वो जाता ही नहीं अंदर ऑक्सीजन। पहले जमाने में पता है हमको कुएं में से पानी कैसा निकालते थे? एक बड़ा चक्र रहता था, उसको छोटे छोटे मटके के बर्तन रहते थे, टाइड अप विथ कॉइल, फिर वो नीचे जाके ऊपर आता था। अगर वही कुएं में तो पानी भरा पड़ा है, कुएं में पानी भरा, लेकिन आपका अगर वो मटके का जो छोटा बर्तन है वही अगर छोटा है, तो कुएं का पानी किस काम का? रॉन्ग फूड की वजह से एसिडिटी, एसिडिटी की वजह से ब्लड पीएच फॉल, ब्लड पीएच फॉल की वजह से श्रिंकेज। भरपूर प्राणायाम करने के बाद अगर आपका आरबीसी छोटा है तो सारा का सारा जो माल है वो बेकार जाता है और आपके सेल को स्टार्वेशन होता है। एक तो पहले ये सारे मवाली लोगों ने, ये मवाली बोलते, मवाली समझते? कन्नड़ी काय म्हणतात मवालीला? राउडी 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 राउडी, हाँ, ये सारे राउडी लोगों ने उसको घेर के रखा है और उसका तुमने ऑक्सीजन कट किया, न्यूट्रिशन कट किया, हाउ ही विल फाइट? वो दुबला हो जाता है, वो और डिजेनरेट होता है या मरता है। फिर होता क्या है? अगेन सी दिस सेल इज नॉट अ सिंगल सेल इन योर बॉडी, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गन। आंख हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, हाइपोथैलेमस हो सकता है, शरीर का किसी भी पार्ट हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है। तो जिस पार्ट पर यह परिणाम होगा उस पार्ट का रोग आपको होगा। मेरे शरीर में भी एच आता है, इनके शरीर में भी एच आता है, दोनों के एच में अंतर नहीं है, केमिकली एच सेम है, लेकिन मेरे शरीर में एच ने घुटने पर हमला किया, सो मेरे को घुटने का प्रॉब्लम हुआ। इनके शरीर पर कमर पर हमला किया तो आपको कमर का प्रॉब्लम हुआ। यू गॉट माय पॉइंट? कॉज इज सेम, वो कहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो जेनेटिकली तय है। जेनेटिकली वेयर यू आर वीक, वल्नरेबल, वहां वो अटैक करेगा।
despite of current being same, despite of the same reason, the area of attack differs from person to person. So ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं. सो जो एसिडोसिस के दो रीजन है. आई विल रिवाइज. एक जनरेशन ऑफ एज, एक्यूमुलेशन ऑफ एज एंड डीजनरेशन ऑफ सेल, और दूसरा है श्रिंकेज ऑफ आरबीसी, thereby resulting in लेस सप्लाई ऑफ केमिकल. थायराइड ग्रंथि सीक्रेट करती है, उसकी मात्रा कम हुई, बाहर से उसने ले ली. एज अ टेम्पररी सपोर्ट ग्रेट, आई हैव नो प्रॉब्लम. लेकिन उसके पीछे क्या रीजनिंग है, लॉजिक है, उसको समझ के देखो. यहां लीकेज हुआ, इतना सुंदर घर है, कितना ब्यूटीफुल घर है, मान लो यहां लीकेज हुआ, सर जी ना हो, लेकिन ये तो बोला बंदा घर में अभी पूरा प्रवेश भी नहीं किया है और इतना अशुभ बोल रहे हैं कि घर को लीकेज हुआ करके. मान लो यहाँ लीकेज हुआ, वो एमसील लगा देता है. एमसील करके ट्यूब आता है, एमसील ऊपर एमसील लगा हुआ, वाह, और ऊपर पेंटिंग भी करो टका. क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका? आपको ढूंढना पड़ेगा कि टेरेस के कौन से वॉल में वो क्रैक गया है, क्योंकि आपको पता नहीं है वो पानी कहां से कहां घूमता है. क्रैक वो विंग में होगा, हो सकता है, बिकॉज आई वॉज कमिटी मेंबर ऑफ माई सोसाइटी और ये सब देखा है मैंने. क्रैक सी विंग में होता है और लीकेज ए विंग में होता है. पहले मैं ये मानने को ही तैयार नहीं था. मतलब कर्म कौन करता है और भोगना किसको पड़ता है. तो ये थायरोनॉम का अगर आप भूल ही लेते हो, टेम्पररी ग्रेट, आई हैव नो प्रॉब्लम. लेकिन कहां शुरुआत हुई है वो देखे बगैर आप करें तो परहैप्स यू आर नॉट गोइंग डाउन टू द प्रॉब्लम. यू आर जस्ट ऊपर कहां सफेदी कर रहे हो, जस्ट व्हाइट वॉश बोलते हैं ना, व्हाइट वॉश. सो दिस इज वन वे हाउ योर बॉडी गेट द डिसीज.